वो बोलते हैं ना, इट्स लाइक अ बूमरैंग, जो जाता है वही आता है 100 की स्पीड से। जो आपने किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा का क्या मतलब? समझ के लेसन ऑफ लव सीखना पड़ेगा। और लेसन ऑफ लव सीखने के बाद तो सिर्फ एक ही काम होता है, आइदर गिविंग फॉरगिवनेस और आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। ग्रैंडफादर ने, उन्होंने एक विलेज को पूरी जला दिया क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। प्रॉमिस ये किया कि हम तुम्हें दूसरी जगह देंगे, नहीं दिया। उन सब लोगों ने कर्स कर दिया। कर्स क्या होता है? दिल से निकली हुई बद्दुआ। ये अफेक्ट करती है? बहुत करती है। आज के वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स हैव एनर्जी, आज भी करती है। हीलिंग, हम सोचते हैं कि हमने कई थेरेपीज भी ले ली तो हम हील हो गए, बट वो हील करते हैं तो कुछ नया आ जाता है। बिल्कुल। तो इट इज सो मल्टी डायमेंशनल। राइट। तो मेडिटेशन एक शील्ड बन जाता है हमारे। मेडिटेशन आपका कवच और कुंडल बन जाता है। क्या मेडिटेशन करने से भी पास्ट लाइफ्स खुल जाती है? तो वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव यू. You are a transformational coach, yes, as I can call you. You are also a soul coach. तो जब हम आपसे मिलते हैं, soul में shift आता है. True. And I have seen and read so many shifts, so many stories I have read. I think if you explain about yourself, how do you conduct your work, how do you do it, it would be great for the audience. Okay, so first and foremost, thank you Tamanna, and thank you everyone for being here watching us. And so when someone comes, when in life you get stuck, और वो stuck situation कोई भी हो सकती है, emotionally, physically, financially और spiritually, whichever path you are on, जहाँ आप अटक जाते हो वहाँ हमारा काम आ जाता है. So I help you move forward in life. I help you meet with your master. So when you are connected with your inner self, your inner master, things become easy. But like I said, you need hand holding during that time. So while we were discussing before, I had said that when people come, they come because they've tried everything and now they've failed and they need someone to give them that gentle push, nudge to move forward in life. Right. तो मैम, what all modalities do you use? तो जब हमारे पास कोई भी आता है ना तमन्ना, हाँ जी. So I don't use just one modality. My sessions are more holistic sessions, and they are wholesome. Wholesome as in WHOLE, wholesome. तो उसके अंदर I incorporate your womb healing if required, inner child healing if required, past life healing, ancestral healing, life between life contracts, and if there are any curses or black magic, all that. So through shamanic healing, that also I help you release them. Right. So the holistic sessions are done in 3 ways. One is one-on-one. आप आते हो मेरे पास, we do the needful, आपको लेके जाते हैं. There are people who are unable to go, or they are not in a state to take sessions. Right. So for उनके लिए we have surrogate sessions. Okay. In which a surrogate, and the surrogate would be a accomplished therapist herself or himself, Okay. who will surrogate, who will go on your behalf, do the work and come back. Okay. Does it work? It works. It works fabulously. Okay. These we do only for those who can't go themselves for whatever reasons. Actually में सफ़र कर रहे हैं. हाँ, maybe, जैसे आप हॉस्पिटल में हैं, yeah. आप बीमार हैं और you are in such a state that you can't come to me. So then someone from your family or my therapist will do the needful on your behalf, on that person's behalf. Then third is sessions which are group sessions, in which a group of therapists, they come together and they do the needful for you. Right. So these are premium sessions. When we do these premium sessions, हम एक दिन में ही 4 से 5 सेशन करते हैं, morning till evening, one after the other, so that आप जो भी
काम से आए हो, जो भी इशू लेके आए हो, by evening Okay. we do the needful and you can go home and embrace the healing. There are certain practices, meditations, which we guide you thereafter for 21 days. You need to do that to Right. integrate the process. Right. So this also is done in two manners. One is for masses, in which we have 30 volunteers, 35 volunteers who come, and they come and participate and do the needful. Right. And then the second one is, like I just shared, the premium ones, in which it is only for those persons who are very short on time and also private persons. They don't want to do it in front of others. Yeah. For them, we do these premium sessions, Okay. all 6, 7. Okay. So this is how I do this. राइट राइट तो मैम जो हमारा चैनल है रीवायर उस पर हम फोकस करते हैं कि वो लोग जो किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, एंड खुद से वो अपने आप को डिफरेंट मोडालिटीज़ वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. Right. तो हम चाहते हैं कि उनको एक्सप्लेन करें कि हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, Right. एंड हम उनको ये बताएं कि वो बाहर आ सकते हैं उस प्रॉब्लम बिल्कुल. से. राइट. जो भी मुझसे मिलता है, पहली चीज़ मैं उसको ये बोलती हूँ, यू आर मोर पावरफुल दैन एनी गिवन सिचुएशन, और आप बड़े आराम से इससे बाहर निकल आओगे. हैव फेथ. राइट. अनलेस यू हैव फेथ, नथिंग विल वर्क. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू हैव फेथ इन अस. जो भी आ रहा है वो फेथ के साथ आए. किसी के प्रेशर में अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली दिस विल नॉट वर्क फॉर यू. डेफिनेटली. Right? And secondly, the way I go about it is, like I said, कि मैं एक ही healing modality नहीं imbibe करती हूँ, incorporate करती हूँ अपने sessions में. So the first thing is we get a journey done for you. ओके. A shamanic journey, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है what is the root cause, ये कहाँ से आया, कितने sessions लगेंगे और कौन से sessions होंगे. जैसे What is shamanic? What does shamanism, shamanic healing is another type of healing. जैसे कि आपकी बाकी की healings है, past life regression है, theta healing है, बहुत सारी healings हैं, वैसे ही shamanic healing है. It's a very ancient healing. और ayahuasca का नाम तो आपने सुना होगा ना. So वो that is also, those are also part of shamanic healing only. तो ये बहुत पुरानी टाइप की हीलिंग है. एंड सो थ्रू दैट what the shamans do is they sit in meditation, they go to the upper world. Upper world is what we call life between life. अपने मास्टर से मिलते हैं कि this person has come और इसको ये प्रॉब्लम है, तो अब क्या करना है. So the master will give a पूरा का पूरा डायग्नोसिस आ जाता है. We call these diagnostic journeys. ओके. सो जब कोई आपके पास आता है तो सबसे आप पहले हम उनके एक डायग्नोस्टिक जर्नी कराते हैं. ओके. तो पूरा का पूरा प्रेग्नोसिस आ जाता है, यानी कि डायग्नोज होके आ जाता है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, हाउ मेनी सेशंस. तो मैम जैसे कि कोई अगर डिप्रेशन से गुजर रहा है, किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो क्या लगता है आपको उनको ये थेरेपी लेने की नीड क्यों है? व्हाई दे शुड नॉट गो टू मतलब of course they should take medical advice. Yes. I always say to everyone, please embrace everything. Yeah. Every knock counts. हमारे पास कोई भी जना आता है, हम उसको ये नहीं कहते कि आप अपनी मेडिसिन छोड़ दीजिए. हाँ जी. हम कहते हैं प्लीज लीजिए, बट बी ओपन टू दिस. ये करने के बाद आपको, बिकॉज सी व्हाट डज द डॉक्टर डू, डॉक्टर गोज अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स. जब वो सिम्टम्स ही ठीक हो जाएंगे तो आप मेडिसिन किस चीज़ की खाएंगे. राइट. ठीक है. सो द डॉक्टर्स जाके वो बोलेंगे हाँ देखा हमारी दवाई काम कर गई. इट्स ऑल राइट. वी आर नॉट हियर टू शोकेस या अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए. नो, वी आर ओनली हियर टू हेल्प. राइट. हमारा काम हो गया, आपकी बीमारी ठीक हो गई, आपकी दवाई छूट गई, एंड यू आर नाउ वॉकिंग द पाथ ऑफ योर सक्सेस इन लाइफ. दैट्स व्हाट मैटर्स. So this is healing beyond mind and body. Yes. Right? See, आज की डेट में if you connect to epigenetics, even the doctors say everything is related to traumas.
अब वो आ कहाँ से रहे हैं, आपकी लाइफ में जो अटकाव आया है वो कहाँ से आ रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्या वो आपकी वूम मेमोरी से आ रहा है, क्या वो आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, क्या वो किसी पास्ट लाइफ से आ रहा है, या कोई एक पैटर्न है जो एंसेस्ट्रली रन कर रहा है थ्रू जनरेशंस, या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी के साथ किया हुआ है कि ठीक है बिकॉज ऑफ कर्मास पिछली लाइफ टाइम में मैंने तुम्हें मारा, इस लाइफ टाइम में तुम बदला ले लो, आई विल बी पेशेंट एंड आई अलाउ इट टू हैपन. So we don't know what the contract is. Yes. So we go and explore all that. कभी कभी there is a lot of tantra involved, negative black magic जिसे हम कहते हैं, जो which is, see, tantra is very good. I'm not saying कि tantra is not good, but anything used negatively for greed or power is wrong. तो वो everything in right moderation is good. Everything in extreme is bad. सो देन वो जो एक्स्ट्रा जो भी कुछ होता है उसको हम डील हील कराते हैं. ओके, सो मेजरली आप डिफरेंट मोडालिटीज जैसे यूज करते हो, बट मेजरली कौन सी मोडालिटी आती है या जो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि लाइव्स बिटवीन लाइव्स इज द मेजर शिफ्ट, बिकॉज हम आपको वहीं पे जाके ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं. ओके, so can you explain what is life between lives? Life between life is दो incarnation, जैसे हमारा ये वाला जन्म है और पिछला जन्म है, उसके बीच का टाइम. Okay. जहाँ हम हैं that is life between life. जहाँ पे हमने ये लाइफ टाइम की स्क्रिप्ट लिखी. Okay. जहाँ पे हमारे डिपार्टेड लव्ड वंस हैं, तो हम उनसे भी मिलते हैं, अपने सोल ग्रुप से भी मिलते हैं, और फिर अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं. अपनी प्रीवियस लाइफ टाइम्स के हिसाब से हम देखते हैं क्या पेंडिंग कर्मास है और कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ ये पेंडिंग कर्मास है. आर दे गोइंग ऑन द प्लैनेट अर्थ, वो भी हमारे साथ इनकारनेट कर रहे हैं, तो उनको डील हील कर लिया जाए. कई बार नहीं होते तो वो पेंडिंग में चला जाता है कर्मा. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम डील हील करते हैं. ये मैं बहुत एक सरल तरीके से बता रही हूँ, गूढ़ जो हिंदी भाषी तरीका है उससे नहीं बता रही हूँ, जस्ट अ लेमैन्स लैंग्वेज. तो जैसे कि आपने बताया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई पैटर्न्स होते हैं, तो वो हमें, अगर हम ये सेशन, मतलब ये सेशन जैसे आपने बोला डायग्नोस्टिक जर्नी, इसमें हमें पता चलता है कि हमें क्या डील करना है. हाँ, और फिर हमें उस टाइम वैलिडेशंस भी मिलती हैं. हमें मास्टर्स बताते हैं कि इनसे पूछो, इनके पास ये पैटर्न है, ऐसा है क्या. सो दैट वी आस्क देम. तो जब हम उनको ये वैलिडेशंस देते हैं तो वो कहते हैं हाँ, मगर आपको कैसे मालूम. जैसे अगर कोई मेरे पास आया, उनकी मासी के साथ कुछ ऐसा हुआ और वो मास्टर्स ने बोला इनसे पूछो इनकी मासी का ट्रॉमा था और ये पकड़ के बैठी हैं अपनी मासी का ट्रॉमा, इज इट ट्रू और रॉन्ग. तो फिर हम उनसे जब वो पूछते हैं, फर्स्ट टाइम किसी से आप मिल रहे हो, उसकी मासी के साथ क्या हुआ, हाउ डू वी नो. तो वो हमारे को जब हमारे मास्टर्स बता देते हैं तो हम उसको बता के उनसे उनका फेथ जीत लेते हैं. सो दे स्टार्ट हैविंग फेथ इन द थेरेपी. उनको लगता है जब इनको ये पता है तो बाकी की चीज़ें भी पता हैं, और ऐसा ही होता है. अब तो एक बहुत अच्छा नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है अनदर सेल्फ करके, वो देखेंगे अगर आपने देखा होगा. सो आवर सेशंस आर लूजली बेस्ड ऑन लाइक दैट ओनली. बट आई सेड लूजली बिकॉज वहाँ पे सिर्फ आप ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग देखते हैं, बट मैं यहाँ पर इट्स अ होलसम हीलिंग. मैं 6 मोडालिटीज़ जो चाहिए उसको वहाँ यूज़ करती हूँ. तो हमने लाइफ बिटवीन लाइफ्स की बात की. एक बार आप हमारे ऑडियंस के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक्सप्लेन कर दो कि क्या होता है उस सेशन में. अभी हमने बताया ना 2 इनकारनेशंस. सो आज जब हमारी आज का लाइफ टाइम है, इससे पहले भी हम अराउंड 400-500 लाइफ टाइम्स जी चुके हैं, जिसमें से काफ़ी सारी लाइफ टाइम्स तो एज ह्यूमन बींग्स ही हैं, और कई बार एक थीम के ऊपर भी कितनी सारी लाइफ टाइम्स होती हैं. बिकॉज जो स्कूल का कॉन्सेप्ट होता है ना, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में जाना, ऐसे ही हमारी सोल की एवोल्यूशन होती है. और फाइनल स्टेज क्या होती है, टू नो दाई सेल्फ, हु एम आई.
और वहाँ तक पहुँचने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम zero state. That's the game that we have agreed to play Right. with ourselves, for ourselves, by ourselves. तो जब ये हमको गेम खेलनी है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो स्टेट, एमनेशिया. यू फॉरगेट कि आप गॉड एसेंस हो. फिर धीरे धीरे लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम यू कनेक्ट टू हु एम आई. और जितने आराम से मैंने बता दिया उतने आराम से होता नहीं है. इसी को जानने में बहुत सारी लाइफ टाइम्स लग जाती हैं. और हर लाइफ टाइम में ज़रूरी तो नहीं है कि बड़ी स्मूथ जाए. तो जो ये माया है इसका अपना रोल होता है. भ्रमित करती है, आपको अटकाती है, आपको भटकाती है. तो उस भटकाव और अटकाव से बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है साधना करना और जानना कि पीछे से क्या स्टोरी है. इट्स लाइक कि अगर आप हैरी पॉटर 4 देख रहे हो और आपने हैरी पॉटर 1 नहीं देखी है, 4 विल नॉट मेक एनी सेंस टू यू, विल इट? सो पास्ट लाइफ से आपको समझ में आता है कि कहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई. व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द इफेक्ट दैट आई एम गोइंग थ्रू. लूजली स्पीकिंग इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. तो जो भी इफेक्ट है उसका कोई ना कोई कॉज है. और वो कॉज क्या है उसको जानना है. एवरीथिंग इज देयर टू अपग्रेड योरसेल्फ. जब आपने वो रियलाइज कर लिया, वो लेसन सीख लिया, इट सीजेस टू बी. जैसे आप 3rd स्टैंडर्ड के एग्जाम्स दे लेते हो, समझ गए, सारी पढ़ाई कर ली 3rd स्टैंडर्ड की, तो फिर देन यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. वो 3rd स्टैंडर्ड आपकी वजूद का, आपका एक कॉन्शियसनेस का आपका हिस्सा बन गया. अब नेक्स्ट टिल यू गो रीच द फाइनल व्हाट शुड आई से स्टेयर, व्हिच इज टू नो thyself. Yes. I was talking to a psychologist one day and she said कि past life regression में आपको क्यों जाना है, मतलब past में क्यों जाना है, present में रहो ना. If you stay fully in present तो आपको past में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So how would you say, मतलब how would you elaborate that? मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया हैरी पॉटर 4 का, कि अगर आप हैरी पॉटर 4 देख रहे हो, आपने 1 नहीं देखी है, you would not understand कि how is he behaving the way he is right now. इसको ये मैजिक कहाँ से आया, where did he get it from, right? तो वो ज़रूरी है to know, not because अटकने के लिए या भटकने के लिए, to understand कि what is the big picture. जो भी आज मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है. सब मेरे पास सपोजिंग कोई पर्सन आता है, आई विल now explain this with an example. मेरे पास सपोजिंग एक मैं आपको एक्चुअल क्लाइंट का बताती हूँ. So there's one person who came to me and she said कि मैं अपनी डॉटर इन लॉ को खुद चूज़ करके लेके आई हूँ, लेकिन जब से मेरे बेटे की शादी हुई है, जब वो मेरे सामने आती है, मेरा मन करता है कि मैं उसे थप्पड़ मारूँ, एक नहीं 2-3 मारूँ. एंड इट दैट इज सो स्ट्रॉन्ग, दैट इरिटेशन इज सो स्ट्रॉन्ग कि मैं पागल होती जा रही हूँ. सो आई नीड रिलीफ फ्रॉम दिस थॉट. उन्होंने कभी करा नहीं, मगर इरिटेशन इस लेवल तक पहुंच गई. और उसकी बेचारी डॉटर इन लॉ इज लाइक, यू नो, कि मैंने किया क्या है मम्मी जी. तो वो मम्मी जी ओनली केम एंड देन जब उनका हमने पास्ट लाइफ सेशन किया, वी रियलाइज्ड कि पास्ट लाइफ में ये दोनों भाई बहन थे. एंड जो डॉटर इन लॉ थी, तो बहन थी वो, और उन्होंने उन आउट ऑफ मतलब वेडलॉक उनका बेबी कंसीव कर लिया था, और जिसके साथ किया था वो उन्हें छोड़ के डिच करके चले गया था. तो इनके बहुत बदनामी हुई थी, सो मच सो कि उनके फादर ने अपने ही किसी काम करने वाले कारीगर के साथ उसकी शादी करा दी, सो दैट बदनामी से बचने के लिए. और पूरी लाइफ टाइम उसने भी, उसकी बहन ने भी, और भाई ने भी, और बाकी लोगों ने भी ऐसे ही बिताई विद लॉट ऑफ शेम सारे समाज से जो मिली उनको. तो उसका गुस्सा था, और इस लाइफ टाइम में वो हील करने आए. फिर जब हमने उनकी हीलिंग कराई तो आज दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. ऐसा भी नहीं है कि बेटे ने अपनी पसंद से कोई शादी करके लेके आए. तो वो बहुत ज़्यादा कश्मकश में थी, बिकॉज शी वॉज माई मदर्स फ्रेंड. तो मेरी मदर की रिकमेंडेशन पे वो आई थी.
तो जब उनकी हीलिंग हो गई, उनकी डॉटर इन लॉ के साथ बहुत resolve हो गया। इशू रिजॉल्व हो गया, और नाउ दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. व्हेन आई से बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एज As per their relationship. yes, as mother in law daughter in law, Yeah. जितनी फ्रेंडशिप हो सकती है वो. Yeah. तो जैसे पिछले लाइफ टाइम में आपने बताया कि समथिंग हैपेंड विद Yeah. देम, या जो स्टोरी आपने बताई, बट ये स्टार्ट कहाँ से होता है? मतलब कोई तो एक लाइफ टाइम होती होगी ना जिसमें जो कोई स्टार्ट करता है, तो उसका क्या रीजन होता है? रीजन एक ही होता है, या ईगो. ओके. व्हेन यू फील कि मेरे पास ज़्यादा पावर है, या मेरे पास ज़्यादा पैसा है, या मैं ज़्यादा सुंदर दिखती हूँ, तो ईगो जब आ जाती है फॉर विच एवर रूट, और ये जो ईगो है यही अटकाती है. इसी को डील हील करना होता है, और इसी को लेट गो करना होता है. जब आप बिग पिक्चर देखते हो, समझते हो, ज़्यादातर जब हम पास्ट लाइफ सेशंस कराते हैं लोगों को, तो वो बिग पिक्चर ये देख पाते हैं कि हमने क्या किया उनके साथ. हर एक लाइफ टाइम में आप विक्टिम नहीं होते हो. आज आप विक्टिम हो तो आप कहीं ना कहीं परपेट्रेटर भी रहे हो. अगर आज आप बिट्रेयल से गुजर रहे हो तो आपने भी बिट्रे किया है. तभी वो कॉज एंड इफेक्ट, जो वो बोलते हैं ना, इट्स लाइक अ बूमरैंग, जो जाता है वही आता है 100 की स्पीड से. तो जो आपने किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा. भुगतना पड़ेगा का क्या मतलब? समझ के लेसन ऑफ लव सीखना पड़ेगा. और लेसन ऑफ लव सीखने के बाद तो सिर्फ एक ही काम होता है, आइदर गिविंग फॉरगिवनेस और आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. मैम, ये आपने बोला कि एट द एंड हमें लेसन ऑफ लव सीखना पड़ेगा. राइट. बट क्या लेसन ऑफ फाइट भी होता है? लेसन ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, लेसन ऑफ स्पीकिंग अप, क्या ऐसे लेसन भी आते हैं बीच में? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है जानना कि यहाँ पे अब ये प्रॉब्लम आई, अब मैं इनको फॉरगिव करूँ विद कंपैशन, या अपने लिए कंपैशन सोच के आई शुड स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ हियर? क्योंकि यहाँ पे नहीं समझ आता कि हम ईगो से डील कर रहे हैं या... बहुत बार ऐसे होता है तमन्ना कि हम ऊपर से फॉरगिव कर देते हैं मगर दिल से नहीं करते. तो इसका मतलब है जब तक प्यार से आप भरे हुए नहीं होगे, दिल से फॉरगिव नहीं करोगे, जो अटकाव है दैट इज नॉट ओवर. बहुत बार हम ऐसे ऊपर के लेवल से बोल देते हैं, ओके आई फॉरगिव यू, जो हुआ हो गया, ओके मैंने अपने हस्बैंड को माफ़ किया, मैंने अपने फ्रेंड को माफ़ किया, अपने बच्चे को माफ़ किया, अपने फलाने ढिमकाने को. बट वो एक्चुअली तब समझ में आता है जब आप ये देखते हो कि आपने उनके साथ क्या बुरा किया था इन सम पास्ट लाइफ. जब आप परपेट्रेटर थे, आज तो आप विक्टिम हो, लेकिन जब आप परपेट्रेटर थे और वो विक्टिम थे, तब क्या स्टोरी थी. तो जब हम वो देख के आते हैं, तब फॉरगिवनेस बिकम्स स्मूथ एंड इजी. तब दिल से आती है, हाँ यार मैंने भी तो गलती करी थी, तो आज उन्होंने कर दी तो नो बिग डील, आई फॉरगिव यू. राइट. क्या मेडिटेशन करने से भी पास्ट लाइफ्स खुल जाती है? बिल्कुल. मेडिटेशन इज द रूट, पास्ट लाइफ थेरेपी और एनी अदर थेरेपी इज द फ्रूट. ओके. तो वो तो करनी बहुत ज़रूरी है. विदाउट मेडिटेशन तो आप पास्ट लाइफ भी नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं, आप ज़्यादा डीप जा ही नहीं सकते. सो दोज हु आर एबल टू सी विजुअली पास्ट लाइफ, उनकी थर्ड आई ओपन ही होती है, एक्टिवेटेड होती है, विच मीन्स मे बी नॉट इन दिस लाइफ टाइम, सम प्रीवियस लाइफ टाइम साधना की है. ओके. हर लाइफ टाइम तो हम साधक नहीं बनते. बिल्कुल. हर लाइफ टाइम में कोई अलग अलग हम रोल प्ले करते हैं, और बहुत सारे जो भी हमने सीखा होता है पास्ट लाइफ से, उसको हम लेके आते रहते हैं. वो हमारे पास होता ही है, हमारे डाटा में होता ही है. राइट. जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं तो सारी लाइफ टाइम्स तो नहीं ओपन अप होती. नहीं, और सारी लाइफ टाइम्स क्यों खोलनी है? जहां आप अटके हो वहीं पे देखने का, मतलब उस मोमेंट पे जहां अटके हाँ, वही खुलेगी. हाँ. ओके. और वही देखने का फायदा भी है. राइट. बाकी क्या, आप आज भी अगर आपकी लाइफ में अगर आप कहीं अटके हो तो वहां जाके उस अटकाव को दूर करने की जरूरत है ना. जो सेलिब्रेटरी है, जो स्मूथ है, जो फ्लोइंग है, राइट, वो तो हो गया ना. तो नेचुरली वही
पास्ट लाइफ पे हम जाते हैं जहाँ पे नेचुरली नहीं, इसके ऊपर थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल Okay. होता है। Okay. और एक थेरेपिस्ट जो है, अगर वो साधना खुद से नहीं करता या Okay. करती, तो कई बार वो चूक जाते हैं। Okay, so we have to choose our therapist very carefully. Yes, that's the role of a therapist is very, very important. Okay. You should go to a genuine one. Okay. तो मैम ऐसे भी होता है कि मैंने सुना है ऐसा कि क्लोजिंग जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन होता है उसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. मैम उसका क्या रोल है, और अगर नहीं ठीक से करते तो what can be अगर the हम सर्जरी cons? कराते हैं लाइफ में Yeah. और सर्जरी के एंड में सूचर्स जो हैं वो ठीक से नहीं आप स्टिच करोगे, वो Yeah. नहीं करोगे, तो क्या होगा? Right. पस बहेगी, Hmm. वूंड बनेगा। Hmm. तो इसीलिए अगर आपका क्लोजर, इट्स लाइक अ साइकिक सर्जरी, पास्ट लाइफ थेरेपी और एनी अदर थेरेपी, एनी मोडालिटी दैट वी डू इज लाइक अ साइकिक सर्जरी ओनली। Unless you are trained, unless you are experienced, unless you are good, please don't do it on others. Right. क्योंकि you're playing with someone's life. और इसका बहुत बड़ा कर्मा भी मिलता है हमें, Okay. Yeah. जो इस लाइफ टाइम में तो शायद समझ नहीं आता, लेकिन आगे की लाइफ टाइम्स में Yeah. बकायदा Because the समझ other में आता person will है। keep bleeding Right. like the open wound. Definitely. Okay. तो मैम आपको क्या लगता है साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को ये थेरेपी यूज करनी चाहिए? क्योंकि बिल्कुल। प्रॉपर हीलिंग, अगर हम माइंड के लेवल पे हीलिंग करें तो उतना डीप तो हम जा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल करना चाहिए। जिस दिन वो लोग इन सब थेरेपीज के साथ जुड़ के संगठित तरीके से आगे बढ़ेंगे, उनके रिजल्ट्स ही बहुत बढ़िया और फार फ्रेचिंग होंगे। तो साइंस कहाँ तक पहुंची है अभी इस थेरेपी को? वो कितना लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वी कैन से कि बहुत कितना सारे अप्रूव कर रहे डॉक्टर्स, हैं? जो डिस्पेंसा इतना सारा काम कर रहे हैं यूएस में, एंड बहुत सारे मास्टर्स एपिजेनेटिक्स के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इतना सारा एपिजेनेटिक्स के बारे में बता रहे हैं। अब आजकल तो प्रॉपर रिसर्च होती है, सब कुछ प्रॉपरली प्रूव होता है, रिसर्च मटेरियल के साथ पूरा डाटा मिलता है। बहुत सारे जो न्यू एज मास्टर्स हैं जैसे ओम स्वामी या ये लोग सब कितना कुछ कर कर के दिखा रहे हैं, हार्ट बीट रोक के और ये सब करके। दीज ऑल प्रैक्टिसेस दे आर डूइंग, व्हाट आर दे सेइंग, शोइंग कि जो हमारी विल है, हमारा जो अपना वजूद है वो बहुत स्ट्रांग है। वी कैन डू एनीथिंग। अगर हम हार्ट बीट रोक सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। So we are more powerful, like I started by saying, we are more powerful than any given situation. उस पावर को पहचानने की ज़रूरत है, बिल्कुल उस पावर से जुड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल। ओके, तो मूविंग फर्दर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमने डिस्कस किया। एक आपने थेरेपी बताई थी इनर चाइल्ड थेरेपी, तो उसके बारे में बताएं कि हमें समझ में आता है कि बचपन में जो ट्रॉमा हुआ वो जब हम आगे कैरी करते हैं तो उस पे हमें जाना है। वी हैव टू रीलिव द चाइल्डहुड इन द थेरेपी सेशन, बट वो भी तो पास्ट से ही आता होगा। प्रेजेंट पास्ट है, राइट? एग्जैक्टली, बट जो ट्रॉमा हमें जो लोग अब्यूज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनके साथ भी तो पास्ट में हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा या हमने पास्ट में कुछ किया होगा। फॉरगिवनेस कराने के लिए फिर हम उनको पास्ट लाइफ्स भी कराते हैं। तभी मैंने कहा कि जो मेरे सेशंस होते हैं वो एक ही चीज पे निर्धारित नहीं होते। मैं इनर चाइल्ड वुंड कहाँ से आया, क्योंकि फॉरगिवनेस नहीं हो पा रही, सो आई हैव टू शो दिस पर्सन द पोलैरिटी। आपने इसके साथ क्या किया था कि इसने ऐसा किया, तो फॉरगिवनेस करा के, हीलिंग करा के आगे बढ़ना जरूरी है। राइट, बिल्कुल। तो हाँ, ये नहीं मैं कह रही कि अपनी बाउंड्रीज खुली छोड़ दो या लोगों को आने दो, करने दो जो भी कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट यू शुड नो हाउ टू मेंड योर बाउंड्रीज, हाउ टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद देम। राइट। प्रॉब्लम तब, देखिए, पानी जब रुक जाता है उसमें तभी कीड़े मकोड़े मच्छर सब आते हैं। बहते हुए पानी में तो कुछ नहीं आता। बिल्कुल, ऐसे ही हमारी लाइफ है। बिल्कुल। जब हम अटक जाते हैं तो सारी सोच के कारण हम सारी ऐसी बीमारियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। राइट। जब हम बहते जा रहे हैं, जीवन के साथ चलते चले जा रहे हैं, तो सब स्मूथ है।
तो आपने कहा कि मेडिटेशन से भी ये जो पोर्टल्स हैं ये खुलते हैं, बिल्कुल, बट आई थिंक वो बहुत स्लो होता होगा। जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स कि आपने पास्ट लाइफ साधना कितनी की है। Okay. मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मेडिटेशन में 2-4-5 महीने में ही इतनी सारी पास्ट लाइफ्स देख ली कि वो हमारे पास आ गई कि इज दिस फॉर रियल। ओके, तो तो क्या फिर- ये डेंजरस भी होता है कि कोई अब खुद से हैंडल ही नहीं कर पाया, हाँ, इतना सो कुछ यू मिल गया? नीड गाइडेंस, Yeah. यू डू नीड गाइडेंस, यू नीड समबडी टू डू हैंड होल्डिंग ओके, थोड़ी देर के लिए। फिर आप इतने अडेप्ट हो जाते हैं, आपको अपने मास्टर्स मिल जाते हैं, सिर्फ पास्ट लाइफ थोड़ी खुलती हैं, फिर योर कनेक्टिविटी विद योर एस्ट्रल मास्टर्स, योर अदर मास्टर्स भी खुल जाती हैं, वो ही आपको आके गाइडेंस देते हैं। ओके। तो अगर हम बहुत सारे- साधना में भी कहीं अटक जाएं, मेडिटेशन में भी कहीं हाँ। अटक जाएं, तो वी नीड गाइडेंस फॉर वी दैट। डू नीड गाइडेंस। So meditation and therapy can work together Yes, they work together beautifully. beautifully. Right. Rather, I would say कि one is not complete without without the other. Yeah. Okay. Yeah, even I have observed कि जब हम ध्यान करते रहते हैं और चीजें सरफेस पे आ रही हैं, कई बार हमें बिल्कुल। समझ नहीं आता कि अब इसका क्या करें, क्योंकि और हमें लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें काम होना चाहिए, बट समटाइम्स वो वी काम होता ही है। मोर ट्रिगर्ड Right. आल्सो। देखिए, जब आपके घर में सफाई होती है, Yeah. झाड़ू लगता है, तो इनिशियली तो सब कुछ इधर उधर खचड़ पचड़ राइट। होती है ना, चेयर्स हटाते हो, टेबल हटाते हो, कार्पेट हटाते हो, झाड़ू लगाते हो, तो जब इनर सफाई हो रही होती है तो ये कौतूहल होना स्वाभाविक है, बट डटे रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी से लगे रहना पड़ता है, फिर वो अपने आप सब ठीक हो जाता है। यू गेट द क्लैरिटी इन मेडिटेशन। राइट, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ये ज़रूरी है। राइट, बिल्कुल। तो इनर चाइल्ड थेरेपी के बारे में मैम आप थोड़ा बताएं कि कैसे हम उसको हील करते हैं, इनर चाइल्ड को। देखिए, कई बार हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, खुशी नहीं है। मुझसे ना कोई बोलता है कि स्माइल फोटोग्राफ्स में भी तो मैं बड़ी कॉन्स्टिपेटेड सी स्माइल देता हूँ, फेक वाली। व्हाई? बिकॉज अंदर से खुशी नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मैं किसी चीज़ को खोज रहा हूँ। किस चीज़ को खोज रहा हूँ? फिर हम जब उनसे कनेक्ट करते हैं एट अ डीपर लेवल, पता चलता है इनर चाइल्ड वूंड्स हैं, बहुत सारे उन वूंड्स के कारण फियर्स हैं और वाइस वर्सा, फियर्स के कारण वूंड्स हैं। तो उनको जब हम डील हील कराते हैं तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्लोइंग ब्यूटिफुली इन लाइफ। बट मैम, जैसे मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत इनर चाइल्ड प्रैक्टिस किया है, बट मुझे ऐसे लगता है कि कुछ टाइम के लिए लगता है कि मे बी इट हैज़ हील्ड, बट वो फिर सरफेस पे आ जाते हैं और ऐसे लगता है कि मतलब अब क्या हीलिंग ही करते रहो, यू नो। क्योंकि आपकी होलसम हीलिंग नहीं हुई। मैं दोबारा से बताती हूँ, आज की हमारी जो भी सिचुएशन है वो 6 जगह से आती है। ओके। नंबर 1 womb, नंबर 2 when you are growing up 0 to 21 years, जहाँ पर आपके इनर चाइल्ड वूंड्स डेवलप होते हैं। नंबर 3 we are a sum total of all our past lives, तो बहुत सारे इफेक्ट पास्ट लाइफ से आ रहे होते हैं। नंबर 4 आपके पैटर्न्स जो एंसेस्टर्स के थ्रू कैरी कर रहे हैं। देखिए, जब एक स्पर्म एंड ओवा मेट करते हैं और एक जाइगोट फॉर्म होता है विच इज़ अ फीटस ऑफ अ फ्यू डेज, तभी एक ऑटोमेटिक डाउनलोड ऑफ डाटा ऑफ 7 जनरेशंस हो जाता है। 7 जनरेशंस फादर साइड, 7 जनरेशंस मदर साइड, उनके पीछे उनकी 7 जनरेशन और फादर के पीछे उनकी 7 जनरेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज आपके पैदा होने में नियरली 4000 एंसेस्टर्स का हाथ है। डेफिनेटली। और इन सब का डाटा ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया। इफ यू हैव अ मेडिटेटिंग मदर, शी विल गाइड यू, शी विल मेक श्योर कि आप फालतू का डाटा नहीं लेके जाओ। बट क्योंकि हमारी जो मदर्स हैं वो उन्होंने स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का एस भी नहीं जाना, मेडिटेशन नहीं किया, तो ये सारा डाटा खुद के पास भी आया और खुद से आगे अपने बच्चों को भी दे दिया। तो क्या हो रहा है? आप अपना बोझ तो उठा रहे हो, अपना डाटा तो ला ही रहे हो, 4000 लोगों का और डाटा ले लेके घूम रहे हो, तो उनके पैटर्न्स भी आपके थ्रू रन करते हैं।
एंड फिफ्थ इज द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट वी मेक इन लाइफ बिटवीन लाइफ. कई बार हम अपने डिपार्टेड लव्ड वंस एंसेस्टर्स से एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, ठीक है आपसे ये पैटर्न नहीं पास हुआ, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, तो मैं भी अटोन करूंगा आप ही का फेट, मैं भी आप ही को कॉपी करूंगा. To break that pattern. Yes. So that pattern can be dealt and healed. और I will make sure कि मैं एक डॉक्टर न्यूटन को या डॉक्टर लक्ष्मी को या किसी और एक अंबिका को या किसी और को थेरेपिस्ट को डालूं बीच में, ताकि वो हमें गाइड करें और हम अपने आप को हील कर सके, डील कर सके और उस पैटर्न से बाहर निकल के आ सके. तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम करके आते हैं. सो दैट इज लाइफ बिटवीन लाइफ. सिक्स्थ इज बहुत सारी लोग आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ फियर जादू टोना में इंडल्ज करते हैं. इट्स अ रियलिटी. ब्लैक मैजिक. और बहुत सारे कर्सेस भी हम लेके घूम रहे होते हैं अपने एंसेस्टर्स के. ये हम शैमानिक हीलिंग. देखो आप एंसेस्टर्स तो कहते हैं कि दे आर ऑलवेज लविंग टुवर्ड्स अस, दे आर लविंग टुवर्ड्स इट. उनके कर्सेस हम कैरी कर रहे होते हैं. ओके, दे हैव बीन कर्स्ड. यस, मैंने आपको बोला ना पूरा का पूरा डाटा आपने डाउनलोड कर लिया. अब फिफ्थ जनरेशन ग्रैंडफादर ने जो जमींदार थे, उन्होंने एक विलेज का को पूरी जला दिया क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई और हमने वो ज़मीन किसी को बेचनी है, तो हमने वहाँ पे जितने लोग रह रहे थे उन सबके घरों को जला दिया. प्रॉमिस ये किया कि हम तुम्हें दूसरी जगह देंगे, नहीं दिया, और वो उन सब लोगों ने कर्स कर दिया. कर्स क्या होता है? दिल से निकली हुई बद्दुआ. ये अफेक्ट करती है? बहुत करती है. आज के वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स हैव एनर्जी. आज भी करती है. आज भी अगर आप किसी को तहे दिल से बद्दुआ दो, थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा वो पर्सन बीमार पड़ा है. फिर हम कई बार खुद को कोसते हैं कि अरे मैंने ऐसा क्यों सोचा. बिल्कुल, है ना. सो दिस इज अ रियलिटी. बट कई बार कुछ लोग अननोइंगली भी कर्स कर देते हैं. डज इट आल्सो अफेक्ट द पर्सन? यस, इट डज. और जो कर्स करता है वो दूसरों के लिए तो बोलता ही है, लेकिन वो खुद से भी अटकता है. इट्स अ बूमरैंग इफेक्ट. व्हाट गोज आउट कम्स बैक टू यू विद स्पीड ऑफ 100. तो वो खुद भी अटका है, तो अब अटके हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो अब कोई जाए हमें मदद करे. जब आप पैदा हो रहे हो तो आपको बोला कि प्लीज यही पैटर्न लेके जाना, हमें अटोन करना, ताकि हम भी आज़ाद हों और हमारे बाद की सारी जनरेशन्स भी आज़ाद हों. कई बार हमारे फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो इन पैटर्न्स के कारण अटकी होती है, इन कर्सेस के कारण. इल हेल्थ भी कई बार जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसीलिए आ रही होती है. और मे बी जैसे आपने कर्स बोला, कई बार एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग भी हो सकती है कि तो कुछ वो ही लोग ब्लेस करते हैं आपको अबंडेंस के लिए. जब एक बार वो फ्री हो जाते हैं, दे आर फुल ऑफ लव. दे आर ऑलरेडी फुल ऑफ लव. नॉट दैट कि हमारे एंसेस्टर्स हमें प्यार नहीं करते, वो तो सिर्फ आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज लेट्स नॉट डिले दिस, लेट्स डू इट. आपसे पहले भी 3-4 जनरेशन ट्राई कर चुकी हैं बट दे फेल्ड. दिस टाइम आप ज़्यादा स्मार्ट निकले, आपने हीलर्स को भी साथ में रखा हुआ है और आपने ये भी लिखा है कि मैं जाऊंगी या जाऊंगा, उनसे हीलिंग सीखूंगी या सीखूंगा, या उनसे कराऊंगी या कराऊंगा, और ये पैटर्न को रिजॉल्व कर दूँ. राइट. ताकि फ्लो ऑफ लव जो अटका था वो ट्रिकल डाउन हो जाए थ्रू द जनरेशंस. 7 generations get the benefit of it. राइट. बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया. तो एक बार जैसे कि ये चीज़ समझ आती है कि अगर इनर चाइल्ड हमने हील कर लिया, तो मे बी जो इनर चाइल्ड, there is something else that needs to be healed. So inner child is not complete healing. अगर हम सिर्फ चाइल्ड, बहुत कुछ हो जाता है उससे. अगर आप सी आउट ऑफ 100 हो सकता है आपका 60% प्रॉब्लम इस इनर चाइल्ड सिचुएशन से आ रही हो. इनर चाइल्ड की भी कई सिचुएशंस होती हैं ना. बिलीफ सिस्टम जब तक आपका चेंज नहीं होगा, वो आपका काफ़ी सिचुएशंस में नज़र आएगा. तो वो हो गया 60%, बट फिर भी वो 40% लैक आ रहा है.
उसको भी तो डील करना है, उसको भी तो हील करना है. हो सकता है वो आपकी एंसेस्टर्स के थ्रू आ रहा हो एज अ पैटर्न, उसको भी जब आप डील हील कर लेते हो तो आपकी कंप्लीट हीलिंग हो जाती है. राइट, बिल्कुल. ओके, तो इसमें हमारे पास एक मोडालिटी के बारे में जिसके बारे में मैं समझना चाहती हूँ, फैमिली कॉन्स्टलेशन. एंसेस्ट्रल हीलिंग इज डिफरेंट. Same. Okay, it's the same. Some people call it ancestral healing, some people call it transgenerational healing. Okay. So this is the same. Family constellation is a way of dealing and healing it. जिसके अंदर एक group of people come, volunteers come, जो आपको नहीं जानते. अब supposing I have my ग्रुप ऑफ हीलर्स और तमन्ना आई है अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके कि मुझे डिप्रेशन है और मैंने काफ़ी सारी दवाइयाँ करा ली हैं बट मेरी वो हील नहीं हो रही. तो फिर हमारे जो ग्रुप ऑफ हीलर्स हैं हम उनके थ्रू वी विल गो टू द रूट कॉज. सारी आपकी लाइफ की स्टोरी निकल के आएगी आपके पेरेंट्स की कि फ्लो ऑफ लव कहाँ अटका है. अच्छा, जहाँ पे अटका है वो क्यों अटका है, व्हाट हैपेंड टू दैट पर्सन. सो यहाँ एपिजेनेटिक्स हो गए एट प्ले. और जब हमने उसको डील हील किया ट्रॉमा को तो द फ्लो ऑफ लव स्टार्टेड फ्लोइंग. और वो जो डिप्रेशन से तमन्ना परेशान थी वो अब ट्रांसफॉर्म हो गया और वो अब एक फ्री फ्लोइंग हैप्पीनेस विजडम में कन्वर्ट हो गया. और वो विजडम तमन्ना अपने साथ भी बांट रही है और पॉडकास्ट के थ्रू औरों के साथ भी बांट रही है. बिल्कुल. तो आपने फ्लो ऑफ लव की बात की. तो फ्लो ऑफ लव हमारी नेचुरल स्टेट है, राइट, है ना? सी देयर आर ओनली टू पावर्स इन दिस वर्ल्ड. वन इज द पावर ऑफ लव एंड द अदर इज द पावर ऑफ फियर. Everything which is positive stems out of power of love. Everything which is negative stems out of fear. बिल्कुल. More powerful is love. जहाँ देखिए लव इज इक्वल टू प्रकाश, इज इक्वल टू लाइट. जहाँ लाइट है वहाँ अंधेरा रह नहीं सकता. जहाँ विजडम है वहाँ इग्नोरेंस रह नहीं सकती. बिल्कुल. सो कनेक्ट टू लव. या इवन ऐसा भी कहा जाता है ना कि कनेक्टिंग टू गॉड, मतलब गॉड इज इक्वल टू लव ओनली. तो मैं तो सबको एग्जाम्पल माइनस और प्लस का देती हूँ. सी माइनस इज व्हाट, नेगेटिव. फियर. प्लस इज व्हाट, पॉजिटिव. Okay. तो जब नेगेटिव है तो उसमें क्या डालना है, एक वर्टिकल लाइन ही तो और ऐड करनी है. ओके. प्यार का तड़का डाल दो. बट वही है कि अगर हम ऊपर से अब समझ सिर्फ इंटेलेक्चुअली हम इसको समझ ले कि हमें इसको प्यार करना है, तो वो जब तक वो एक्सपीरियंस में नहीं जाएगा, जब तक वो भावों में नहीं आएगा, तभी हम बोलते हैं ना होलिस्टिक हीलिंग करनी. जहाँ अटके हो वहाँ पे हमारी मदद के लिए आओ. बाकी सारा काम आपकी मेडिटेशन कर देगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो मेडिटेशन में लाइक जैसे कि आनापानासती है, जैसे हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं, उसे हम कहते हैं आनापानासती. और उसके बाद जब हम और डीप जाते हैं तो विपासना है. राइट. आनापाना में जैसे कि हमें बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं. हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं और मतलब हमें विजुअल्स भी आते हैं. बट विपासना में ये सिखाया जाता है कि वी हैव टू फील द सेंसेशंस ऑफ द बॉडी. क्योंकि वो सबसे पहले बॉडी सेंसेशन से, काया अनुपासना से ही शुरू होती है. काया की उपासना करनी जरूरी है. तो ये सारी चीजें होती ही हैं. दीज आर वेरियस स्टेजेस. विपासना इज अ स्टेज ऑफ मेडिटेशन. ओके. तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम उन विजुअल्स में अटक जाते हैं. हाँ. बट देन उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाते. सो द बेस्ट थिंग इज टू कीप फ्लोइंग, बी कंसिस्टेंट. जैसे कि जब आप पढ़ाई चालू करते हो स्कूल में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हो, हर टाइम थोड़ी फर्स्ट स्टैंडर्ड का सिलेबस देख रहे हो. सेकंड में अलग आएगा, थर्ड में अलग आएगा. सो ऐसे ही एज यू आर प्रोग्रेसिंग द पाथ ऑफ मेडिटेशन, ये सारी आएंगे, अलग अलग स्टेजेस आएंगी, अलग अलग पड़ाव आएंगे, टिल यू रीच द वननेस स्टेट व्हेन यू नो हु एम आई. तो तब तक छोड़ना नहीं है. बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हमें तो विजुअल्स आने लग गए, अरे हमें तो क्या बढ़िया एक्सपीरियंसेस होने लगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अब हमें मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है. रॉन्ग. और हमारे पास तो जो हमारे देवी देवता हैं, अगर आप उनको देखो, आज भी शिवा को देखो वो बैठे हैं, बुद्धा को देखो वो बैठे हैं मेडिटेशन में. व्हाट आर दे सेइंग? कि दिस इज नेवर एंडिंग साधना. सो कंटिन्यू न इति, जिसका कोई अंत नहीं है. तो इसीलिए बहते चलो. राइट.
ये आपने बहुत ब्यूटीफुल बात कही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हीलिंग हम सोचते हैं कि ये हमने एक थेरेपी ले ली या हमने कई थेरेपीज भी ले ली तो हम हील्ड हो गए, बट वो हील करते हैं तो कुछ नया आ जाता है। बिल्कुल, तो इट इज सो मल्टी डायमेंशनल। राइट। तो वहाँ पे हम बहुत, जैसे कि अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लिया, सपोज कुछ हील हुआ हो, हाँ। बट उसके बाद फिर कुछ और भी है, नया आ गया। हाँ। तो वो होलसम हीलिंग होनी ज़रूरी है, एंड मेडिटेशन से आप ये सारी होलसम हीलिंग्स के तक पहुंच सकते हो। लाइक आई सेड बिफोर, मेडिटेशन इज द रूट, ऑल दीज मोडालिटीज आर द फ्रूट। राइट, राइट। तो होलसम हीलिंग की जो आपने बात कही मैम, तो होलसम हीलिंग में भी क्या वो एक्चुअली में होलसम हो जाती है? राइट, उसके बाद भी तो सो ऑल दीज होलिस्टिक हीलिंग्स जो हम करते हैं, दे हील द मिराजेस ऑफ लाइफ। ओके, मतलब जो बिग ब्लॉक्स है, राइट, वो मिराजेस, जो भी आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ थी, सच्चाई वो नहीं होती। बिग पिक्चर तो कुछ और ही है ना। राइट, जो इफेक्ट आप देख रहे हो, आप आज देख रहे हो, व्हाट इज द रूट कॉज। बिल्कुल। वंस यू रियलाइज कि ठीक है, मैंने भी ऐसा किया था, मुझसे भी ऐसी गलती हुई थी, तो मैं माफ कर देता हूँ। सो यू बिकम दैट फॉरगिविंग सेल्फ, और आप अपने आप को भी एम्ब्रेस कर पाते हो, अपनी गलतियों को भी एम्ब्रेस कर पाते हो, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट। सी, यू कैन जज एंड पास जजमेंट ऑन एनीवन, एंड जब हीलिंग की बात होती है, अपने ऊपर सेल्फ क्रिटिसिज्म को हील करना, सेल्फ जजमेंट को हील करना सबसे मुश्किल होता है। और वो आता है जब आपका थर्ड आई एक्चुअली एक्टिवेट हो जाता है, तो उससे रिलेटेड सारा काम होना शुरू हो जाता है। और आप जब अपने आप को माफ़ कर देते हो, यू आर फुल ऑफ लव। सी, outside world is a mirror image of your inner world. As within, so without. As above, so below. So outside जो भी आप देख रहे हो, these are all mirror images, reflections of thyself. तो जब अंदर से आप प्यार से भर जाते हो, अपने आप को forgive कर देते हो for whatever you've done in whichever lifetime, and you are full of love, आपको वही प्यार दूसरों में नजर आता है। एक अच्छे मास्टर की पहचान ही यही होती है, जो आपसे बिल्कुल ऐसे ही मिले, बात करे जैसे वो अपने आप से मिलता है और बात करता है, उसी प्यार के साथ। ओके, राइट। जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है। बिल्कुल। अहम ब्रह्मास्मि राइट, तत्वमसि। बिल्कुल। तो आई वेंट फॉर विपासना in 2000 last year 2024. So when I came back, just ऐसे explain करो ना, I was feeling love for everybody. Yes. कुछ तो मुझे ऐसा लगे कि बिल्कुल चीजें बदल गई, मतलब Right. I didn't love that person, but I'm feeling love भी नहीं कह सकते, compassion जैसा feel हो रहा था for everybody. Right. But with time, I think वो ड्रेन होता गया या हम वापस से, Because आप रोज नहीं कर रहे होगे ना मेडिटेशन। Were you continuing those meditations? maybe not that much. Right. Yeah. So अगर आप वो meditations करो, जैसे full moon होता है, तब आप थोड़ी ज़्यादा देर बैठ जाओ। Okay. But otherwise minimum equivalent to your age बैठ रहे हो। वो कॉस्मिक बात आपको रोज अंदर से भी लेनी जरूरी है। जैसे आप बाहर से नहाते हो, ऐसे अंदर से भी अपने आप को साफ करना जरूरी है। नहीं तो ये बाहर के वातावरण का रंग जो है वो चढ़ जाएगा, दूषित कर देगा, माया का अपना रंग चढ़ने लग जाएगा। उससे निजात पाने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन रोज करना, मिनिमम इक्विवेलेंट टू योर एज, इज अनिवार्य, मैंडेटरी। ओके, ठीक है मैम, आपने बताया कि हमें मेडिटेशन करना है, बट मेडिटेशन के बाद क्या, मतलब जैसे कि मैंने 1 घंटा मेडिटेट किया, उसके बाद मैं पूरा दिन तो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रही हूँ या आई एम इंटरेक्टिंग विद पीपल, तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मैं उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रही जो मैंने। हाँ, आप सर्वाइवल मोड पे चले जाते हो। Yes. फाइट और फ्लाइट, क्योंकि मेडिटेशन किया बहुत अच्छा हुआ, विपासना की बहुत अच्छी हुई, पूरा रिलैक्स हो गई बॉडी, बट देन आई एम जंपिंग टुवर्ड्स माय फोन। तो इसका हम हल, जब हमारे पास कोई भी होलिस्टिक सेशन लेने आता है,
हमारे पास वन ऑफ आवर थेरेपिस्ट इज एन AI एक्सपर्ट. हम उनसे माइंड मूवी बनवाते हैं उनकी. वो माइंड मूवी होती है 2 से 3 मिनट्स की. इट इज़ अबाउट हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी. और हम उनको बोलते हैं फॉर 21 days कीप वॉचिंग दिस. और उसके बाद तक वो आदत पड़ जाती है 4 times a day. That's the prescription. This is one of the prescription that we give them. This is something which they have to do after our sessions. मतलब it's which like is power mandatory. of visualization आप यूज कर रहे हो. और उससे क्या होता है, वो जो सर्वाइवल मोड में वापस चले जाते हैं. क्योंकि जैसे ही आप बाहर आए, आप फोन में लग गए, इसमें लग गए. अब हम फोन के ही थ्रू अगर दिन में 4 बार आपको ये दिखा रहे हैं माइंड मूवी, तो आपके अंदर फर्क आएगा ही. ओके. तो खुद से क्या करें अगर हमें ये चीज, मतलब ये तो अगर आप align ये करना किसी हो से अपने बनवा नहीं सकते, तो अपनी माइंड मूवी खुद बनाओ. अपने माइंड में बनाओ. एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन रखो जो दिन में 4 बार करनी ही करनी है. वो आपको सर्वाइवल मोड से बचा के रखेगा. और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग फोन में अगर कुछ देखना है तो सिर्फ माइंड मूवी देखनी है. और कुछ नहीं देखना. फर्स्ट आवर आफ्टर गेटिंग अप शुड बी डेडिकेटेड टू योर मेडिटेशन एंड योरसेल्फ. वो हम बाहर भी बना सकते हैं, किसी पेपर पे भी बना सकते हैं. हाँ, आप है ना? एक जो वो विजन बोर्ड बना सकते हो. vision board. ठीक है. बहुत सारे तरीके हैं, बट ये करना जरूरी है. राइट. इससे आप अपनी वो सर्वाइवल मोड से बार बार नहीं जाके फंसोगे, उसमें नहीं फंसोगे. अब मैंने ये भी पढ़ा था कि मेडिटेशन के बाद कुछ टाइम बैठना ज़रूरी है. मतलब मेडिटेट हो गया, उसके बाद सिट विद योरसेल्फ. वो कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज शायद कुछ इमोशन या कुछ इंट्यूशन, कुछ भी जो सरफेस पे आए, उसे उसके साथ बैठना. हाँ, वो भी ज़रूरी है. और वो आपको, जैसे कि मैं ये वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ, सर्वाइवल मोड, इससे इसकी तरफ जाने से आपको बचा लेता है. वो बैठना. ओके. आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि फिर इन सब चीज़ों का असर, कोई भी कुछ कहता है वो आप तक पहुंचता नहीं, अंदर हार्ट तक नहीं पहुंचता. इट्स लाइक कि अगर आपकी घर में, आपके गली में या आपके टाउन में बाढ़ आ गई है, फ्लड्स आ गए हैं, और आप पेंट हाउस में रह रहे हो, कितना फ़र्क पड़ेगा फ्लड्स का आपके पेंट हाउस में? मे बी फॉर अ फ्यू आवर्स थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी. इसके अलावा तो आपको कोई असर नहीं आएगा. तो मेडिटेशन एक शील्ड बन जाता है हमारे. मेडिटेशन आपका कवच और कुंडल बन जाता है और आपको सही रास्ते पे ले जाता है और राइट अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने में भी मैग्नेटिकली हेल्प करता है. आप मैग्नेटाइज करते हो. लाइक आई सेड, एज विद इन सो विदाउट. जो अंदर है वही तो बाहर से अट्रैक्ट करोगे. जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हो, वही फ्रीक्वेंसी के सिचुएशंस और लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे. राइट. ओके. तो एज वी इवॉल्व, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, कुछ हील हुआ, तो फिर हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी में भी, वी आर ऑन अ लाइटर फ्रीक्वेंसी, तो हम इवॉल्व होते हैं. तो उसके बाद क्या हम ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं जो और वुंडेड है? शायद हील होने के लिए. ओके. या और ऐसा भी होता है कि लेसन्स और डिफिकल्ट हो जाते हैं. ये क्वेश्चन मेरा लेसन्स तो देखिए लास्ट, टिल योर लास्ट ब्रेथ चलते ही रहेंगे, मगर वो अब आपको तंग करना छोड़ देंगे. यू टेक इट एज अ चैलेंज. ओके. एंड यू ऑल्सो नो you have the divine wisdom, you will cross them. As we become stronger with meditation, with healing, with therapy, does it become more challenging? Like, ऐसे कहते हैं ना कि अब बड़ी क्लास में हो गए हैं तो एग्जाम भी डिफिकल्ट आएगा. क्या ऐसा भी होता है? मैंने आपको बोला, आने दो. Okay. You are prepared to deal and heal him. Maybe we are prepared, इसीलिए आ रहे हैं वो. हाँ, देखिए पहले जब कोई ऐसा एग्जाम आता था, आप महीनों महीने लग जाते थे, आप उस सिचुएशन में ही अटके रह जाते थे. और द मोमेंट यू शिफ्ट योर फोकस टू दैट, यू आर आउट ऑफ दैट सिचुएशन. आप अटकते नहीं. जब मैं विपासना से आई थी ना, मे बी आई विल कट इट लेटर, जब मैं विपासना से आई थी, एक तरफ तो आई कुड सी लव फॉर एवरीबडी, क्योंकि पता नहीं अननोन लोगों के लिए भी ऐसा फील हो रहा था कि देयर इज सम कंपैशन, बट एक फियर ना दिख रहा था. वो फियर ये हो रहा था कि एक तो ये था कि शायद बहुत टाइम सर्वाइवल मोड पे जिए और एकदम से बिल्कुल प्रेजेंट में थे. होता क्या है कि जो हमारे
सप्रेस्ड इमोशंस हैं, फियर्स हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, वो आते हैं टू गो। उस टाइम उसको हील करना होता है विद पेशेंस। और हम लोग क्या करते हैं, उसी टाइम मेडिटेशन बंद, डर जाते हैं और भाग जाते हैं। That's what I did. कि ये क्या मैं देख रही हूँ, अरे ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए कभी कभी आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। इसीलिए पहले जमाने में कहा जाता था एक गुरु का होना जरूरी है। और आज की डेट में भी ये सार्थक है, क्योंकि गुरु इज समबडी हु इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल राइट, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, डोंट स्टॉप मेडिटेटिंग, कंटिन्यू, इट विल हैपन। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, नो बिग डील, आपके साथ भी हो रहा है। वो If I can- fear stop कर देता है Right. to move forward. तो वो फियर को ही तो डील और हील करना है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग को मैं जानती हूँ, उनके ना कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हुए विपासना में, एंड देन वो उससे डर गए। यू नो, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दोज एक्सपीरियंसेस, बट कई बार ऐसा होता है, आपको कुछ लोग दिखने लग जाते हैं जो कि नॉर्मल आई से तो देखते हो। आई नो समबडी, जब वो मेडिटेशन कर रही थी, मेडिटेशन करते करते उन्होंने बोला, मैम मुझे ना आप क्लोज्ड आइज से भी नजर आ रहे हो, और आप ये अभी आप पेन से कुछ लिख रहे थे ना, मैं वो भी पढ़ सकती हूँ। इट्स ऑल राइट, उनकी थर्ड आई पूरी अवेकन हो चुकी थी। आई सेड ग्रेट, now you can see from your third eye also, not only inside but also outside. So this is something very nice and positive. अब इसको positively use करना है। So we helped her channel it, and now she is doing so well as a therapist herself. Right. She's with me, she's one of my team members, and she does such beautiful journeys with such wonderful validations. Such wonderful master she's become. Great, very beautiful. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग गूगल करते हैं और जो लोग भेजते भी हैं, पास्ट मतलब थेरेपिस्ट को लोग भेजते हैं। हाँ. तो उनको लगता है कि जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो वो हमारे माइंड की इमेज थी, मतलब हमारी इमेजिनेशन थी, वो रियल नहीं था। तो उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं ये कहूंगी कि अगर उस इमेजिनेशन से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, जहां आप अटके हुए थे वहां से आप बाहर निकल गए, तो ऐसी इमेजिनेशन को तो सल्यूट है। ओके, ठीक है। तो एक क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया बट शी कुड नॉट गो वेरी, मतलब वो देख ही नहीं पाई अपनी कोई पास्ट लाइफ। हाँ, तो इसका मतलब है कि कोई ना कुछ रेजिस्टेंस है, चाहे वो बिलीफ सिस्टम की हो या किसी चीज़ का फियर हो। सो दैट नीड्स टू बी डेल्ट विद। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। ऐसे लोगों को हम ब्रेथ वर्क या मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं, इसके थ्रू वो इस रेजिस्टेंस को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ओके, वंडरफुल। ओके, तो एक किसी ने कहा है कि जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया वो सिर्फ अपने बचपन तक ही पहुंच पाई। हाँ, उससे बियॉन्ड नहीं कुछ देख पाई। क्योंकि कई बार हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है, हमें नहीं, हमारे घरों में ये सारी चीज़ों के बारे में ओपननेस नहीं होती। वो कहते हैं क्या करना है पास्ट लाइफ में। स्पेशली एज अ चाइल्ड, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कभी बोला हो ये सब बकवास होता है, योर पेरेंट्स आर लाइक गॉड टू यू, तो उनकी बात हम पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ही है। तो इसको ब्रेक करने के लिए मेडिटेशन। ऑल्सो ये भी हो सकता है क्योंकि चाइल्डहुड भी थोड़ा पास्ट ही है, चाहे प्रेजेंट पास्ट, तो वहीं पे इतना कुछ ट्रॉमेटिक है। हाँ, कुछ भी कारण से हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस वहां से आ रही हो। लाइक आई सेड, बिलीफ सिस्टम कवर्स एवरीथिंग। यानी कि वो आपके पेरेंट्स का कोई इशू है या ग्रैंड पेरेंट्स का, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक हुआ है जिसके कारण आप अटक गए हो, यू आर अनेबल टू गो बियॉन्ड दैट। तो उसको हील करना पहले इनर चाइल्ड हील होगा, फिर हम उसके बियॉन्ड जाएंगे। इनर चाइल्ड हीलिंग के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पोर्टल्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, बिकॉज हमारे मोस्ट ऑफ द फियर्स आर कमिंग फ्रॉम देयर। राइट, ओके। किसी ने ये पूछा है कि उसमें हिप्नोसिस होता है, तो उसका कोई कौन भी है, मतलब इज इट डेंजरस और इज इट कम्प्लीटली सेफ, और किस तरह का हिप्नोसिस होता है? देखिए, हिप्नोसिस का मतलब है कि आप बीटा स्टेट से पहले अल्फा स्टेट पे आए, अल्फा से आप थीटा स्टेट पे आए, ठीक है।
बस। और हाँ, कभी कभी हम डेल्टा तक टच करते हैं, बट वो बीटा स्टेट में आप नहीं हो। तो जैसे ही हम डीप अल्फा स्टेट में जाते हैं, अल्फा से थीटा स्टेट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। आपकी जो भी स्टोरीज हैं वो ओपन अप होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे आप उसको विजुअली देख पा रहे हो या काइनेस्थेटिकली फील कर पा रहे हो। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि कुछ लोग फील करते हैं, हाँ. कुछ लोग आवाज सुनते हैं, कुछ लोग तो क्या सबसे बेस्ट है? और सारे ही सेंसेस बेस्ट है जिससे भी आप कनेक्ट करते हो। मेरे पास एक एयर होस्टेस आई थी जिनको विजुअली वो नहीं देख पा रही थी, तो मैंने उनको बोला आप फील करके जाओ। तो फिर वो अपनी एक ऐसी पास्ट लाइफ में गई जिसमें उनकी उस लाइफ टाइम में बच्चों की शिप में शिपरेक से डेथ हो गई थी, और वो जोर जोर की चीख चीख के रोने लग गई। सुबह सुबह के इतना रोई कि उनका जो बाहर बॉयफ्रेंड बैठा था वो मुझे टेक्स्ट मैसेजेस करने लग गया कि मैम एवरीथिंग ऑल राइट, शुड आई कम इनसाइड? तो मैंने उनको बोला डोंट कम इनसाइड, ऑल इज वेल। तो फिर जब वो बाहर आई तो वो कहती मुझे ऐसे लग रहा था कि एक्चुअली मेरे बच्चे हैं और उनके साथ ये हो रहा है। आई मीन आई वाज फीलिंग एज इफ इट्स हैपनिंग हियर एंड नाउ। तो फीलिंग्स नेवर लाई। और मुझे तो बहुत बार लगता है कि जो लोग फील कर पाते हैं वो ज्यादा जल्दी हील हो पाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस अपनी लाइफ में लेके आते हैं। बिल्कुल। आई थिंक when I went for past life regression, I also like went through it by feeling only. Right. And फिर मैंने कहीं पढ़ा भी, मतलब आई थिंक मैं काफी पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि if you can feel it, you can heal it. Sure. क्योंकि that's the truth. जब तक हम अपनी फीलिंग्स के साथ अवेयर नहीं होंगे तब तक हम हील नहीं कर पाएंगे। राइट। बिल्कुल। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजें यूज करते हैं तो फीलिंग्स नम हो जाती हैं, तो हीलिंग शायद तब डिले हो जाती होगी। राइट। क्योंकि आप आर्टिफिशियल मोड पे जी रहे हो, सर्वाइवल मोड पे जी रहे हो, फियर और फ्लाइट में अटके हो। राइट। ठीक है, इसीलिए। और अभी आपने अपने क्वेश्चन का आंसर वैसे खुद ही दे दिया कि फीलिंग्स अभी आपने थोड़ी देर पहले किसी का क्वेश्चन लिया था कि हम कैसे भरोसा करें कि हमारी पास्ट लाइफ है। feelings. If you can feel it, like you said, you can heal it. Yeah. Okay. So, किसी ने पूछा है how long does a session take? 1 hour to 2 hours. Okay. कई बार कुछ लोग अटक जाते हैं तो 2 के 2.5 हो जाते हैं। वैसे मैंने 4-4 घंटे के भी सेशंस किए हैं, but they are very rare. Normally it takes 1 hour. Right. Okay. So, वैसे ये बहुत फनी है, बट किसी ने पूछा कैन आई चूज विच लाइफ टाइम टू गो? When we are in life between life, before we incarnate, we are given choices. I didn't know that. We are given choices. We choose the theme. Okay. And we choose the lifetimes to go in. तो जो भी as अंबिका मैंने और as तमन्ना आपने लाइफ टाइम चूज की है वो हमने ही चूज की है। इसीलिए जब मुझसे कोई आके ये क्वेश्चन पूछता है ना, बिकॉज आई डू टैरो ऑल्सो, सो पीपल से मेरी लव मैरिज होगी, मेरी अरेंज्ड होगी, आई फील लाइक लाफिंग। आइदर वेज इट्स यू हुज क्रिएटेड योर स्टोरी, लाइक you've written your story. So how does it matter? Like, you know, fine. But yes, वो कहते हैं ना कि आई नो थोड़ा सा ये वो हो जाएगा, बट स्टिल नोन पर्सन जो होता है ना वो बेटर होता है। नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। वो कहते हैं ना फेमिलियर chaos की तरफ हम जाते हैं, अनफेमिलियर जॉय से हमें डर लगता है। मतलब इट्स बीन सेड कि वी मूव टुवर्ड्स फेमिलियर chaos. राइट, बट आई ऑलवेज टेल एवरीवन हैव फेथ। जो भी आपने चूज किया है इट इज डिवाइनली गाइडेड, जस्ट फ्लो विद इट। जैसे आपने बोला कि हमने स्क्रिप्ट खुद ही लिखी है अपनी, बट क्या हमने एक ही स्क्रिप्ट लिखी है, हमने चॉइसेस भी लिखी होंगी, जिसे कहते हैं फ्री विल भी है? फ्री विल कार्ड हमेशा हमारे पास होता है, हमेशा हर उस पे सिचुएशन में वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। यस, वी वेरी सेल्डम यूज दिस ट्रम्प कार्ड of free will. Reason, because there is a reason why we've written this challenge in our life. The hidden bigger picture is something else. इसको क्रॉस करने के बाद आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है. So, as a soul, you were aware while planning. So, my humble request to everyone generally is
flow with the flow of life. That's the motto of my life. Keep flowing. It's all right. Because the big picture is, आप ही ने तो सारे challenges डाले. पर जैसे हमें बचपन से ही मोरल साइंस की बुक लग जाती है ना, और इतने सारे एथिक्स सिखाए जाते हैं, वैल्यूज सिखाई जाती हैं, तो कई बार मतलब आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल कि कुछ ऐसा कर दिया उन्होंने या कुछ ऐसा हो गया विच इज अगेंस्ट द एथिक्स और मोरल्स, बट क्या ये भी उन्होंने खुद ही लिखा था एंड देन फिर गिल्ट आ जाता है? देखिए, थोड़ी सी चीजें होती हैं which are a complete no-no. ओके, Like killing someone. या Violence is never a part of the बिल्कुल, contract. बिल्कुल, अगर आप वो कर रहे हो तो वो गलत है. राइट, बाकी सब इज अ लर्निंग टूल. ओके, राइट. क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं ये भी सिखाया जाता है कि नथिंग इज गुड और बैड, टेक इट That's एज why I इट said कम्स. everything else is a healing tool. या वो आपको अपग्रेड करने के लिए है. बिल्कुल. ओके, ओके, सो वन इज व्हाई डू आई फील स्केयर्ड ड्यूरिंग रिग्रेशन? बिकॉज डर से तो सभी को डर लगता है, पर डर के आगे ही जीत है. सो एज अ थेरेपिस्ट मेरा काम ये होता है टू हेल्प यू क्रॉस ओवर, ट्रांसफॉर्म दिस फियर इनटू लव बेस्ड एनर्जीज. राइट, कि ये फियर आ क्यों रहा है, कहाँ से आ रहा है. गो टू द रूट कॉज. ओके, When you see the root cause, when you see the big picture, it's like you've switched on the light, अंधेरा गायब. अब पता चल रहा है ये सांप नहीं था, ये रस्सी थी जिसको हम सांप समझे बैठे थे. टू रीलिव इज टू रिलीव. To relive is to release, relieve. और हमेशा ऐसा होता है कि ऐसा भी होता है कि कई बार हम रीलिव कर लेते हैं बट उसको रिलीज नहीं कर पाते. हाँ. Does it happen? It happens. Okay. क्योंकि आप उसका रीजन बहुत बारी ये होता है सेल्फ डाउट. You don't have faith on what you are doing. You are doubting कि ये हो गया है. कई बार हम वो थेरेपी में जाते तो हैं तब भी हमें बिलीव नहीं हो रहा होता कि यहाँ से हीलिंग मिलेगी कि नहीं, शिफ्ट आएगा कि तभी नहीं. मैं सबको कहती हूँ फ्लो विद द लाइफ, फ्लो व्हाटएवर इज हैपनिंग. और जो भी आपने किया है उसको एम्ब्रेस करो, थोड़े दिन वेट करो. शिफ्ट तो आएगा. कितना बड़ा आ रहा है, टाइम विल टेल. हमारी कोशिश यही है, 1 healer per family, या so that automatically there is a shift in consciousness. मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे हीलर्स हो गए हैं, पर अभी आपने बोला कि 1 हीलर पर Per फैमिली, तो family. अब समझ में आता समझ में आती है बात. It is required. More healers are required. बिल्कुल. Moving to next question. So, someone says, what do I do if I have a terrifying experience? मतलब past life regression के बाद भी she is not able to overcome that information. So that means कि उसका सेशन कंप्लीट नहीं हुआ. Okay. जो थेरेपिस्ट उन्होंने चूज किया उसने अपना काम पूरी तरह से नहीं किया. क्योंकि कोई भी एक बढ़िया थेरेपिस्ट आपको उस स्टेट में नहीं छोड़ेगा. Okay. So yeah. So there, can she go back again? Yes, she should. Okay. She should take another session and close it properly. राइट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम. ओके, किसी ने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, डज इट टेक मेनी ट्राइज बिफोर, क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं करते और कभी कोई ऐसी प्रैक्टिस या साधना नहीं की इस लाइफ टाइम में, तो उनको लगता है कि क्या बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन ट्राई करने पड़ेंगे? आप before उनसे actually- पूछो कि ड्राइविंग व्हील पे, स्टीयरिंग व्हील के साथ बैठने से एकदम ड्राइव करना शुरू कर दोगे आप कार? नहीं ना. Obviously not. तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी ना, Yeah. ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. यहाँ ट्रेनिंग इज मेडिटेशन. राइट. जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, या तो आपकी प्रीवियस लाइफ टाइम की साधना होनी चाहिए या प्रेजेंट लाइफ दैट वी नेवर नो, वो जाकर ही पता चलेगा. हाँ. ना. यस. कुछ लोग कहते हैं कि मैं देखना चाहती हूँ कि हाउ डिड आई डाई. हाँ, तो क्या वो भी पास्ट लाइफ श्योर. फियर ऑफ डेथ सबसे पहले निकलता है ओके. जब आप पास्ट लाइफ्स में जाते हो. तो ठीक वो बिल्कुल डील हील हो जाता है जब आप देखते हो कि अरे आई हैव सीन सो मेनी पास्ट लाइफ्स, हर लाइफ टाइम में मर के मैं फिर जी रहा हूँ या जी रही हूँ, अनदर रोल, अनदर इनकारनेशन.
Right. So you let go the fear of death Oh, yes. and you और start living fully. यस और ऐसा भी होता है कि जैसे दो पास्ट लाइफ के बीच में जैसे आपने बताया कुछ जो लाइट होती है आई हैव हर्ड कि दैट इज वेरी हीलिंग सो हाउ इज दैट हीलिंग लाइक द प्रेजेंस ऑफ दैट लाइट heals something or shifts Yes. something. So that light symbolizes divinity. और जब आप डिवाइन के साथ हो, डिविनिटी में ओत पोत हो, तो हीलिंग तो होएगी ही. Divinity in the sense with दिव्यता, the हाई कॉन्शियसनेस, गॉड एसेंस, देवी देवता, कुछ भी आप कुछ लेबल भी दे हो दो, सकता कुछ भी नाम बोल दो उनको. बहुत ब्यूटीफुल. कुछ लोग YouTube पे वो देखकर सुनकर वो जो रिग्रेशन सेशंस बहुत सारे आजकल अवेलेबल हैं उनसे भी ट्राई करते हैं. तो इज इट इफेक्टिव और Yes, it is it is affected if you've done past life sadhana or if you are a meditator. Yes. ओके. नहीं तो आप आधा ही सुन के बोर हो जाओगे and you बट वो वहाँ पे जैसे अभी किसी ने पूछा था वो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस अगर कोई है तो then it is इसीलिए very dangerous. it is dangerous. है ना? See, so you have to go through the entire thing. क्योंकि Yes. अगर कोई आपको पास्ट लाइफ मेडिटेशन करा भी रहा है थ्रू ऑनलाइन या यूट्यूब और विच एवर सोशल मीडिया हैंडल, तो यू हैव टू डू इट कम्प्लीटली. यू कांट लीव इट इन बिटवीन. ये डेंजर होता है व्हेन यू आर डूइंग अलोन. Right. यू हाफ वे, कोई आ गया, बेल बज गई, कुछ आप खड़े हो गए, फिर आप भूल गए. What you did was you opened Yes. something and you didn't close. Yeah. बिल्कुल. So then who's responsible for this? Yes. I, me, myself. Yes. So that needs to be taken care of. Right. ये एक बहुत बड़ा डेंजर होता है बिल्कुल बिल्कुल इसके through करने के लिए. डेफिनेटली. ओके. क्या PLRT ट्रिगर भी कर सकती है एंजाइटी? ज़्यादातर नहीं. हाँ, मगर कई बार ऐसा होता है कि वो अंदर जो सप्रेस्ड इमोशन है उसको बाहर ले आती है. इसीलिए किसी भी आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे वो बोलेंगे 3 to 4 सेशंस टू हील वन इशू. तो उतने सेशंस करने के बाद ही किसी राय पे पहुंचना, उससे पहले नहीं. किसी ने ये भी बोला है कि PLRT करवाने के बाद उनको बहुत ड्रीम्स आने लग गए. विच इज नॉर्मल ना. ओके. ड्रीम्स आने का मतलब है योर थर्ड आई इज गेटिंग एक्टिवेटेड समहाउ. ओके. तो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं मे बी कोई? बहुत सारा काम हम ड्रीम्स के थ्रू करते हैं. ओके. हर सपना कुछ कहता है. ओह, दैट इज अनदर पॉडकास्ट आई थिंक. Yes. राइट. Being a professional dream decoder, I know so. ओके ओके ओके. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. समटाइम्स आवर नर्वस सिस्टम ब्लॉक्स मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट फॉर सेफ्टी. लाइक हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट? क्योंकि हमें ऐसा कहा जाता है कि हम उतनी ही चीज़ एक्सेस कर सकते हैं जितना हमारा नर्वस सिस्टम उसको डील कर पाए. तो इसके लिए उसको हील करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी. Become a meditator. Allow your healing energies to heal you. ओके. मेडिटेशन से हम कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप को हील कर पाते हैं. और फिर यू विल बी ओपन अप टू गो डीपर. तो उससे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी नर्वस सिस्टम को सो दैट वी कैन गो. कुछ भी प्रॉब्लम है वो हील हो जाएगी. ओके. सो वी कैन से कि कुछ लोग ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन आजकल ऐसा टूल बन गया. कुछ लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लेते हैं कि मजा आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड इट वुड बी फन. तो क्या वो करना चाहिए? व्हाई नॉट. अच्छा, व्हाई नॉट? ओके. या करो, एक्सप्लोर करो ओके. और कुछ बढ़िया ही मिलेगा. ओह रियली. बट मुझे जैसे आई हैव रेड समवेयर कि जब तक कोई क्रॉनिक इलनेस ना हो जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा हो या फिर उसका सोल्यूशन, तब आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए. बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू आर Okay. क्यूरियस ऑल्सो ओके. टू नो अबाउट दिस मोडालिटी देन ऑल्सो यू कैन डू. और कई बार ऐसा होता है डेजावू फीलिंग होती है. एक Yeah. जगह को लेके आपको बहुत लगाव होता है. मेरे पास एक प्लास्टिक सर्जन आई थी डॉक्टर, एंड शी सेड कि मुझे नॉर्वे जगह बहुत पसंद है. Okay. और मैं कितनी बार जाती हूँ, वहीं जाती हूँ. इनफैक्ट मेरी फैमिली जब भी कहीं जाने को बोलते हम नॉर्वे नहीं जाएंगे. ओके. तो शी वॉन्टेड टू चेक कि मेरा नॉर्वे के साथ इतना लगाव क्यों है. क्यूरियोसिटी. सो व्हेन आई regressed her, she had a very happy lifetime there. और जब वो रीलिव करके आ गई उसके बाद से फिर वो
उनकी वर्ल्ड की बाकी की एक्सप्लोरेशन साइट्स ओपन हो गई. Okay. नॉर्वे से उनको समझ आ गया कि क्यों मुझे इतना लगाव है. ओके सो ऐसा लोगों के साथ भी होता होगा क्योंकि सम पीपल आर वेरी क्लोज टू अस और हमें ऐसे इंटेंस कनेक्शन फील होता है बट वी डोंट नो व्हाई. तो ये भी इसका भी बिल्कुल. आंसर पास्ट लाइफ में. बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं पास्ट लाइफ से. बिल्कुल बिल्कुल. Okay, so I think we have covered all the questions and you have answered them so gracefully. Thank you, thank you. And it's time to close the podcast, close the Right. session. So thank you so much, ma'am. I think Welcome. I have got all clear explanation of past life regression I'm and glad. I'm really grateful to have you here. Thank you for your wisdom, for your presence and for Honored, in coming gratitude. here. Thank you. It was such an honor, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Honored and Thank in you. gratitude.